Healthy morning, students. Today we are going to understand one more question of chapter 6, which is life processes. The question is importance of four chamber heart in birds and animals, or explain evolution of heart from fishes to mammals, or how heart and blood circulation varies in higher animals. See, evolution of heart, that means the different change in the heart is start from the fish. See, first of all, fish were having a particular system, a particular blood circulatory system, which is called heart. See, main work of heart we know very well. It pump up blood in the body. Okay. So first of all, fish have developed two chambered heart. That means upper chamber atrium and downward ventricles. After then fish, the heart इवॉल्व इन द एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. उसका मतलब फिश के बाद हार्ट में जो चेंज आया वो चेंज देखा गया एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में. वी नो एम्फीबियंस आर दोस विच कैन लिव इनसाइड द वाटर एंड ऑन द लैंड, एंड रेप्टाइल्स दैट मीन क्रोलिंग एनिमल. सी दिस एम्फीबियंस रेप्टाइल वेर हैविंग थ्री चैम्बर हार्ट, जिसमें ऊपर के टू चैम्बर एट्रियम थे और डाउन टू वेंट्रिकल्स. फिर हार्ट में और डेवलपमेंट हुआ. देन फुल्ली डेवलप हार्ट वॉज इवॉल्व in birds and mammals. Bird and mammals have four chamber heart. Upper two chamber are called atrium and down two chambers are called ventricles. You might be thinking why mammals? You know very well humans are mammals. They are having four chamber heart. हमें फोर चैम्बर हार्ट की इसलिए ज़रूरत है कि हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है और फोर चैम्बर हार्ट की वजह से हम ज़्यादा जीते हैं. हमसे कम एम्फीबियंस जीते हैं और एम्फीबियंस और रेप्टाइल से भी कम जीते हैं फिश. ये हार्ट की वजह से. अब समझते हैं कि ऐसा क्यों. ओके, फर्स्ट ऑफ लेट अस अंडरस्टैंड हार्ट इन द फिश. फिश हैव टू चैम्बर हार्ट. upper chamber atrium and down chamber is called ventricle. The blood is pumped to the gills where it receives oxygen. Oxygenated blood passes directly to the rest of the body. Thus blood goes only once through the heart. Let us understand this. Say this is the heart of the fish and it is impure blood, that means deoxygenated blood. एक बात दिमाग में बिठा लो, deoxygenated blood मतलब वो blood के जिसके अंदर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी impure blood. ओके, कौन सा blood? Impure blood. Say it is called atrium and it is called ventricle. See, impure blood enters into atrium, then it enters into ventricle. Through ventricle it passes through the gills. See, this is gills. Here it get oxygen and release carbon dioxide. अब यहाँ पर देखो ये गिल्स अटैच होते हैं फिश के माउथ से. फिश जब माउथ ओपन करती है तो ऑक्सीजन गिल्स में एंटर होता है और गिल्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है. तो अब ये ब्लड गिल्स में आएगा, यहाँ से ऑक्सीजन ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड वो दे देगा और वो फिश के माउथ के थ्रू बाहर निकल जाएगा. चेक इट आउट. हियर ब्लड रिसीव ऑक्सीजन एंड इट बिकम्स रेड एंड दिस ब्लड पासेज थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो यानी ब्लड हार्ट में कितनी बार आया? ओनली वन टाइम. सो वी कैन से कि देर इज वन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द हार्ट ऑफ फिश, और फिश है ओनली टू चैम्बर हार्ट, upper atrium and down ventricle. Now let us understand heart in the amphibians and reptiles. Amphibians or reptiles have three chamber heart. They can tolerate mixing of oxygenated and deoxygenated blood stream. Because they are cold blooded animal, their body temperature change according to the environment. Let us understand this. Say we know frog is amphibian and frog have थ्री चैम्बर हार्ट. से दिस इज द हार्ट ऑफ द फ्रॉग. जो आपको ब्लू कलर दिखता है वो सारा इम्प्योर ब्लड है और रेड कलर जो दिख रहा है वो सारा प्योर ब्लड है. यानी ब्लू कलर वाला ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है और रेड कलर वाले ब्लड में ऑक्सीजन. See, these are the three chamber of the
हार्ट ऑफ एम्फीबियंस. अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया, डाउन इज कॉल्ड वेंट्रिकल. देखो अब यहाँ से इम्प्योर ब्लड आएगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला. फ्रॉम हियर प्योर ब्लड दैट मीन्स ऑक्सीजन. upper 2 chamber are called atrium, down is called ventricle. See, deoxygenated or impure blood enters into right atrium. At the same time, oxygenated or pure blood enters into left atrium. Okay. Now from both atria contract and blood enters into ventricle. Check it out. हियर ब्लड गेट मिक्स विथ ईच अदर, यानी प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स हो जाता है और मिक्स ब्लड पूरे बॉडी में पास होता है और बॉडी ऑर्गन ही वापिस ये प्योर और इम्प्योर ब्लड को अलग कर देते हैं. यानी एम्फीबियंस ही ऐसे होते हैं कि जिसमें प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों एक साथ में पास होता है. ठीक है. सी दिस एम्फीबियंस आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बिकॉज देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट. जबकि हम ह्यूमन हैं वो वार्म ब्लडेड है. हमारा बॉडी टेम्परेचर हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता नहीं है. आप अमेरिका में जाओगे तो भी आपका बॉडी टेम्परेचर 36.6 है, वो वही का वही रहेगा, वो चेंज होगा नहीं. आप कहीं पर भी चले जाओ. दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड एंड एम्फीबियंस आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड. ओके. सी एम्फीबियन ही ऐसे कि जिसमें ब्लड मिक्स हो जाता है. देखो फिश में भी ब्लड मिक्स नहीं होता है. अगर हम फिश में देखें तो यहाँ पर इम्प्योर ब्लड होता है, फिर प्योर होकर ऑर्गन में चला जाता है, कभी भी ब्लड मिक्स होता नहीं है. सो दिस इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एम्फीबियन. नाउ बर्ड्स एंड एनिमल्स. बर्ड्स एंड एनिमल हैव 4 चैम्बर हार्ट. व्हाई वी आर हैविंग 4 चैम्बर हार्ट? बिकॉज वी रिक्वायर्ड more energy to maintain our body temperature. As I told you, we are warm blooded. Our body temperature does not change according to the environment. In such animal, blood passes through the heart twice during each cycle. In other vertebrates, this is known as double circulation. See, हम ही बर्ड्स और मैमल्स हैं कि जिसके हार्ट में ब्लड 2 बार पास होता है. एम्फीबियन में भी 1 टाइम पास होता है, फिश में भी 1 टाइम ही पास होता है. तो फिश एंड एम्फीबियन हैव सिंगल टाइम सर्कुलेशन while we are having double circulation. Let us understand. So this is the heart of mammals, यानी हमारा या तो बर्ड्स का. upper 2 chamber atrium and down to ventricles. अब हमें मालूम है कि ये इम्प्योर ब्लड राइट हैंड साइड, प्योर ब्लड लेफ्ट हैंड साइड एट्रियम में से जाता है वेंट्रिकल में. ओके. अब देखो अब क्यों डबल सर्कुलेशन बोला जाता है? क्योंकि ब्लड 2 टाइम हमारे हार्ट में पास होता है. पहले जब इम्प्योर होता है तो अब इस साइड से ब्लू कलर का होके यहाँ आता है, फिर ये इम्प्योर ब्लड यहाँ से जाता है लंग्स के पास, वहाँ से प्योर बन के वापस आता है लेफ्ट हैंड साइड. यानी ब्लड जब इम्प्योर होता है कार्बन डाइऑक्साइड तो राइट हैंड साइड आता है हार्ट के, फिर वहाँ से लंग्स में जाके प्योर बन के हार्ट के लेफ्ट हैंड साइड आता है. यानी एक ही ब्लड कितनी बार पास हुआ? 2 बार. पहली बार जब इम्प्योर था तब और दूसरी बार जब प्योर था तब. दैट्स वाई आवर ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल ब्लड सर्कुलेशन. सो वाई वी आर हैविंग 4 चैम्बर हार्ट एंड वी आर हैविंग डबल सर्कुलेशन? बिकॉज आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज मोर. ओके. नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. See this red color, whatever red color vessels is there, it is arteries. Okay. So generally in arteries pure blood flows, that means oxygenated. Arteries carry blood from heart to body organs, and this blue color blood is deoxygenated, that means the blood having carbon dioxide. So it is called vein. So vein carry blood from body parts to the heart. So keep in mind one thing, artery carry blood from heart to body part
and vein carry blood from body part to the heart. Let us discuss about the wall of the arteries. What do you think? The wall of the artery should be thin or thick? It is thick, क्योंकि हार्ट से जो ब्लड आता है बहुत प्रेशर के साथ आता है. अगर ये वॉल थिक नहीं हुई देन दे विल ब्रस्ट, आर्टरीज फट जाएगी. बट इट डज नॉट हैपन बिकॉज वॉल ऑफ द आर्टरीज आर थिक, while walls of the veins are thin. Why thin? Because blood flow with a very low pressure. ठीक है, इसलिए वो thin होती है. So simple, keep in mind one thing. Arteries carry blood from heart to body part. Wall thick. Vein carry blood from body part to the heart, and wall is thin. Let us understand about the capillaries. See, these are the arteries. Check it out. The wall is thick, so pure blood from the heart enters into the arteries. Check it out. Then it divided, arteries divided into many small vessels which are called capillaries. See, these are the capillaries. Arteries divided into many small vessels, it is called capillaries. और ये सारी रेड कलर कैपिलरीज ऑर्गन में एंटर होती है, ऑर्गन को ऑक्सीजन दे देती है और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है. जब ये आर्टरीज कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी तब ये बन जाएगी ब्लू, और वापिस से आर्टरीज कंबाइन होके बनती है वेन. एक बात याद रखना, प्योर ब्लड लेके जो आर्टरीज आती है वो डिवाइड होके कैपिलरीज बनती है. कैपिलरीज जब ऑक्सीजन दे के कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है तो ब्लू कलर की बन जाती है. अब ब्लू कलर वाली कैपिलरीज डिवाइड नहीं होती, वो कंबाइन होती है. दे जॉइन एंड दे फॉर्म वेन. सो इन द वेन impure blood flows, and here blood flow with a very low pressure, so its wall is thin, and this blood directly goes to the heart. यानी आर्टरीज में ब्लड हार्ट से आता है और वेन का ब्लड हार्ट में जाता है. सो दिस इज द arteries, capillaries and veins. Let us read from the question. Blood circulates throughout the body along definite routes through vessels called blood vessels. First blood vessel, arteries. It carry blood from heart to different part of the body. Arteries, blood flow with high pressure, so its wall are thick. Now veins. Say, veins, it carry blood from different part of the body to heart. In vein, blood flow with low pressure, its wall is thin. To prevent backward flow of blood, blood valves are present in the veins. Let us see these blood valves. Say, see this is the blood valve. अब ये वाल्व सिर्फ वेन्स में होता है. क्यों? क्योंकि वेन में इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है. अब जो इम्प्योर ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, ऊपर की तरफ, यानी हार्ट की तरफ. अगर ये वाल्व नहीं होगा तो हार्ट से भी इम्प्योर ब्लड वापस ऑर्गन में चला जाएगा, जो हमारे ऑर्गन को डैमेज करता है. अभी देखो, इम्प्योर ब्लड वापस ऐसे जाने का ट्राई करेगा तो ये वाल्व क्या हो जाएगा, क्लोज. इसे सिर्फ वन डायरेक्शन में ही, यानी हार्ट की तरफ ही इम्प्योर ब्लड जाए, इसकी वजह से वहाँ पर होते हैं वाल्व. ब्लड कैपिलरीज. ऑन रीचिंग टू द ऑर्गन और टिश्यू, आर्टरी डिवाइड into many small vessels. These small vessels known as blood capillaries. It have single cell thick walls. Exchange of material between blood and surrounding takes place through the capillaries. Capillaries join together to form veins. Okay, as I had explained. आर्टरीज डिवाइड टू फॉर्म कैपिलरीज. ये कैपिलरीज है जो ऑक्सीजन ले लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और ले लेती है. फिर कैपिलरीज ये यहाँ जॉइन होके, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो क्या बनती है, वेन्स. ओके, ये वेन्स है. सो दैट्स इट अबाउट द ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज.
Okay, thank you.